آئیے دوستوں، اب تمام ساتھیوں کا پھر سے ایک نیو کلاس میں ویلکم، خوش آمدید، استقبال۔ دیکھیں گے اب وقت نہیں ہے آپ کے ایگزام میں، 22 تاریخ سے ایگزام شروع ہو رہی ہے، اسی لیے تن من دھن سب کو لگا دیجیے، اپنے پڑھائی میں وقت نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیوز میں ہم آپ تمام ساتھیوں کو VVI آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو کہ سوال آپ کے ایگزام میں آنے والے ہیں، وہ سبھی سوال اس ویڈیوز میں ہم کور کروانے کے لیے آ گئے ہیں۔ فوقانیہ امتحان 2024 یہ دینیا دوم کا یہ ویڈیوز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلاس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کون سے کلاس میں سب سے زیادہ دقت ہو رہی ہے، کلاس کہنے کا میرا مطلب کہ کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ کمزور ہے، وہ بتا دیجئے گا ایک بار کومنٹ باکس میں، تاکہ میں اس سبجیکٹ کا جو کلاس ہے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے لائیو میں چلاؤں جلد سے جلد، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں۔ تو چلیے آج کی اس دنیا دوم کو ہم شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو رٹنا ہے جو چیزیں ہم بتائیں گے، اس میں آبجیکٹیو بھی بتائیں گے اور پیارے ساتھیوں سبجیکٹیو کوشچن کو بھی ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ اب تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، چینل پر اگر پہلی بار وزٹ کریں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو ہر خبر اور جو سٹیک اور صحیح خبر ہے وہ آپ کو یہاں پر آئے، کیونکہ اس پر اب جو ہے جابس والی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوگی، تو آپ لوگوں کو جو ایگزام دے کر کے آئیں گے، ریزلٹ جو آئے گا، تو پھر فارم وغیرہ بھی آپ اپلائی کریں گے تو اس میں کامیابی آپ کو ملے گی اس چینل سے، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیوز کو میں سب سے پہلے سبجیکٹیو سوال جو امپورٹنٹ ہے، یہ لکھنے والا سوال سب ہے، تو یہ سبھی کو آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے آپ کو دنیا دو میں جو سبجیکٹیو سوال اس طرح سے پوچھے جائیں گے کہ نکاح کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے اور کن کن الفاظ سے منعقد نہیں ہوتا ہے، کن دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، درج ذیل 5 لفظوں میں سے کسی ایک کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے پیارے ساتھیوں، اس کا جواب جو ہے آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے جس طرح کے یہاں پر ہم جواب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنا کاپی نکالیے اور اس میں یہ سوال کو لکھیے اوپر میں اور یہ جواب کو، کیونکہ یہ سبھی امپورٹنٹ سوال ہے اور آگے بھی ہم بتائیں گے ٹک لگانے کے لیے۔ تو درج ذیل 5 لفظوں میں سے کسی ایک کے کہنے سے نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کیا کہا کہ نکاح کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے، تو یہاں پر 5 الفاظ جو ہے نیچے دیا گیا ہے، ان 5 الفاظ سے جو ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے اول کہ لفظ نکاح، اس کے بعد نمبر 2 میں ہے تزویج، اس کے بعد ہے پیارے ساتھیوں نمبر 3 میں ہے تملیک، اور نمبر 4 میں ہبہ، اور نمبر 5 میں صدقہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ سوال کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ والا کلیئر ہو گیا۔ اب دیکھیں گے پیارے ساتھیوں، سوال یہاں پر دوسرا تھا کہ کن الفاظ سے نکاح نہیں ہوتا ہے، تو درج ذیل الفاظ کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ سب سے اول میں کہا اجارہ اور آپشن نمبر 2 میں کہا اعارہ اور اباحت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 3 الفاظ کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا سوال تھا کہ نکاح کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا، اور کس سے منعقد نہیں ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور تیسرا جو سوال اسی میں ہے کہ کن 2 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، تو یہاں پر اس کا جواب آئے گا پیارے ساتھیوں، سگی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا خواہ صحبت میں خواہ ملک عین یعنی خرید کر حرام ہے۔ یوں ہی عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ، اس کی بھانجی یا اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ آپ کو دیکھیے یہاں پر ہم نے اس ایک سوال کے اندر سے 3 سوال کو کور کروایا۔ اس میں آپ کو آبجیکٹیو بھی کلیئر ہوا اور سبجیکٹیو بھی۔ اب آبجیکٹیو کیسے کلیئر ہوا وہ سمجھاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا جو سوال کہا کہ نکاح کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے، تو آپ کو اسی طرح سے آبجیکٹیو میں دے دے گا، اور آپشن الف میں دے گا لفظ نکاح، آپشن با میں دے گا تزویج، آپشن نمبر تا میں دے گا تملیک، اور آپشن نمبر جیم میں دے گا ہبہ، اور آپشن نمبر دال میں دے دے گا صدقہ، اور آپشن نمبر اس طرح کر کے 6 آپشن دے دے گا آپ کو، وہاں پر کہے گا کہ ان میں سے سبھی۔ تو آپ کیا ٹک ماریں گے پیارے ساتھیوں؟ ان میں سے سبھی۔ اور دیکھیے دوسرا جو آپ کا آبجیکٹیو یہ حل ہوا کہ اور کن کن الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، تو پیارے ساتھیوں کن کن الفاظ سے نکاح نہیں منعقد ہوتا ہے، تو آپشن اے میں دے دے گا آپ کو اجارہ، آپشن بی میں دے دے گا آپ کو اعارہ، اور آپشن نمبر سی میں دے دے گا احاد۔ تو آپ کیا ٹک ماریں گے
प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ए में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये तीनों लफ्ज जो है, ये तीनों अल्फाज को अगर कहेगा कोई तो निकाह जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका हमने क्लियर किया और सब्जेक्टिव भी। ठीक है प्यारे साथियों, और यहाँ पर सगी दो बहनों को बेवक्त निकाह में जमा करना या फिर सोहबत में खा मुल्क आयन यानी खरीद कर या हराम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। थोड़ा सा चलिए सब्जेक्टिव को और लंबा लिखना होता है, तो यहाँ पर फिर आपको इस तरह से लिखना है कि साहब कुदूरी ने इसके लिए जो कायदा कलिया बयान किया है वो ये है कि ऐसी दो औरतों को जमा करना जायज़ नहीं कि जिनमें से किसी एक को मर्द फ़र्ज कर लिया जाए तो इसलिए दूसरी हलाल ना हो। मसलन दो बहनों को कि अगर एक मर्द फ़र्ज कर लिया जाए तो भाई बहन का रिश्ता होगा, या यही हाल फूफी और भतीजी में और खाला व भांजी के दरमियान है। ये कायदा जिन दो औरतों के दरमियान जारी होगा उन दो औरतों को जमा करना हराम है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा तो उस तरह बनाएंगे, सब्जेक्टिव में पूछा तो इस तरह आप ये सवाल को क्लियर करेंगे प्यारे साथियों। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना आप लोगों को। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो सवाल आएगा आप लोगों के पास वो ये आएगा कि निकाह के गवाह के लिए क्या शराइत हैं, ज़िम्मी के गवाही के मुतालिक अइम्मा का इख्तिलाफ तहरीर करें। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर भी आप लोगों का हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे इसमें, इससे जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं और जो सब्जेक्टिव। तो जवाब इसका इस तरह है कि निकाह के गवाह के लिए दर्ज झेल शराइत है। नंबर 1 में है आज़ाद होना, नंबर 2 में है आकिल होना, नंबर 3 में है बालिग होना और नंबर 4 में है मुसलमान होना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि निकाह के गवाह के लिए क्या शर्त है, क्या शराइत है, क्या कानून है। तो ऑप्शन ए में रहेगा आपको आज़ाद होना, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी में रहेगा आकिल होना, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी में रहेगा बालिग होना, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी में रहेगा मुसलमान होना, ये भी सही है। और ऑप्शन करके फिर दिया हुआ रहेगा ई, कहेगा कि इनमें से सभी। तो आप क्या टिक मारेंगे, आज़ाद होना भी ज़रूरी है, आकिल होना भी, बालिग होना भी, मुसलमान होना भी, ये चारों सही है। तो आप इनमें से सभी को टिक लगाइएगा ना प्यारे साथियों, लगाइएगा या फिर नहीं लगाइएगा। निकाह के गवाह के लिए कितने चीज़ों का शर्त है, तो इतना चीज़ों का। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ और सब्जेक्टिव में भी आपको इस तरह लिखना है कि निकाह के गवाह के लिए ये चीज़ें शर्त है। अब देखेंगे प्यारे साथियों, फिर इसका जवाब इस तरह लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा दो मर्द या एक औरत और मर्द होना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, फिर इसका इस तरह लिखना है कि किसी ने अगर दो ज़िम्मी गवाह की मौजूदगी में निकाह किया तो इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम यूसुफ के नज़दीक निकाह जायज़ है। अलबत्ता इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त तक निकाह जायज़ न होगा जब तक दो मुसलमान गवाह न बन जाए। तो यहाँ पर प्यारे साथियों, जो कुछ इमाम हैं उसके जो इख्तिलाफ हैं उनको भी समझाया है, उसको भी बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी का सवाल जो थे आपके इम्पोर्टेंट है और क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। और एग्ज़ाम से पहले कोई चीज़ ऐसी होगी जो वहाँ पर डाली जाएगी तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने नंबरों का हमने सवाल को हल कराया। चलिए फिर आप नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको फिर हम तीसरा सवाल और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर सवाल कहता है कि मुसन्निफ़े कुदूरी के हालाते ज़िंदगी पर मुख्तसर लिखिए। यानी कि प्यारे साथियों, मुसन्निफ़े कुदूरी का मतलब है कि कुदूरी के जो लेखक हैं, मुसन्निफ़ है, राइटर है, उनके हालाते ज़िंदगी यानी उनका जो ज़िंदगी कैसा गुजरा है उसके बारे में आपको मुख्तसर यानी कि कम वर्ड में कहा लिखने के लिए। लेकिन इस सवाल के अंदर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। देखेंगे यहाँ पर इस तरह जवाब है कि कुदूरी के मुसन्निफ का असल नाम अहमद है। अब देखिए कि प्यारे साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछा जाएगा कि कुदूरी के मुसन्निफ का असल नाम क्या है, यानी कि रियल नाम क्या है।
ऑप्शन ए में दे देगा महबूब, ऑप्शन बी में दे देगा अहमद, ऑप्शन सी में दे देगा क्या कहते हैं रियाज, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को हमने क्या बताया कि क़ुदूरी के मुसन्निफ का असल नाम क्या है, अहमद है। तो अहमद जो है वो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या कीजिएगा, इस तरह करके आराम से आपको क्या करना है, घेर देना है प्यारे साथियों। अब देखेंगे इसी तरह आगे बढ़िए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा और कुनियत जो है अबुल हुसैन है। प्यारे साथियों, आपसे फिर सवाल किया जाएगा कि क़ुदूरी मुसन्निफ के जो क़ुदूरी के जो राइटर हैं, लेखक हैं, मुसन्निफ हैं, उसका जो कुनियत है वो क्या है प्यारे साथियों, अबुल हुसैन है या फिर अबुल फजल है या फिर महबूब है या फिर दानिश है। तो क्या आप टिक मारेंगे प्यारे साथियों, कुनियत क्या है, अबुल हुसैन, यही ना टिक मारेंगे। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि और उनके वालिद का नाम मोहम्मद है। प्यारे साथियों, फिर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछा जाएगा कि क़ुदूरी के जो मुसन्निफ है उनके वालिद का नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है यही से बनते हैं, इसी तरीके से, समझे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क़ुदूरी के मुसन्निफ का असल नाम क्या है, वो मोहम्मद है। अब देखेंगे प्यारे साथियों, फिर इसी में आपको लिखना, इनकी पैदाइश 362 हिजरी में शहर बगदाद में हुई। अब देखिए फिर आपको एक सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि मुसन्निफ क़ुदूरी यानी कि क़ुदूरी के मुसन्निफ जो है अहमद, उसकी जो पैदाइश हुई है वो कौन से हिजरी में हुई है। तो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये चार जवाबात दिए हुए रहेंगे। ऑप्शन ए में रहेंगे 361, ऑप्शन बी में 362, ऑप्शन सी में 363, ऑप्शन डी में 364। तो आप किसको टिक मारिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन बी को या फिर ए या फिर सी या फिर डी। ऑप्शन बी में क्या है, 362, तो 362 को टिक मारिएगा ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर आपको लिखना है कि बगदाद में हुई। तो आपको इस तरह यहाँ पर सवाल बनता है कि क़ुदूरी के जो मुसन्निफ है उनकी जो पैदाइश हुई है वो किस शहर में हुई है। तो ऑप्शन ए में रहेगा बगदाद शहर, ऑप्शन बी में रहेगा यूपी शहर, ऑप्शन सी में रहेगा लखनऊ शहर, ऑप्शन डी में रहेगा दिल्ली शहर। तो आप किसको टिक मारिएगा, ए, बी, सी या फिर डी को। तो प्यारे साथियों, जिसमें बगदाद शहर लिखा हुआ रहेगा, चाहे ए में रहे या फिर बी या फिर सी या फिर डी, तो उसी को ना टिक मारिएगा प्यारे साथियों। तो इस तरह से आप लोगों का यहां तक ये क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि एक कौल के मुताबिक वह दीग साजी का काम करते थे, इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके क़ुदूरी कहे जाते हैं। एक दूसरा कौल ये है कि जिस गांव के बाशिंदा थे उस गांव का नाम क़ुदूर था, इसलिए उन्हें क़ुदूरी कहा जाता है। तो इस तरह करके आप लोगों का हालात ज़िंदगी भी क्लियर हो गया और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। और दूसरी चीज़ आपको हम एक चीज़ ये बताते हैं प्यारे साथियों, अब तो आपके एग्जाम में वक्त नहीं है ना, मान लीजिए ये सभी क्वेश्चन तो जहां तक हो पा रहा हम करवा ही रहे, लेकिन इसके बावजूद ये जो ऑब्जेक्टिव आपको चुन चुन करके हमको बताना पड़ रहा है, तो इसमें तो वक्त भी लग रहा है आप लोगों का। लेकिन इसके लिए एक एग्जाम मंथन नाम से प्यारे साथियों हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ को तैयार किया है, जिसमें आप लोगों का अब जो है हर सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, और सब्जेक्टिव रहेगा। तो अब जिस बच्चों को लिखना उतना नहीं आता होगा या फिर लिखने भी जानते हैं, तो उनके पास क्या कहते हैं क्वेश्चन रहेंगे, तभी ना याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो उसके लिए एग्जाम मंथन नाम से आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ को तैयार किया है, और उसका जो क्या कहते हैं कम वक्त में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर गाइड लिए भी होंगे तो उसमें हज़ारों क्वेश्चन है, तो उसमें किसको किसको याद कीजिएगा आप। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। उसके अंदर एग्जाम मंथन के अंदर जो जो मोस्ट VBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी को हम बताए हैं। उसका जो प्राइस था 399 था, लेकिन उसको 50% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि हम भी एक गरीब फैमिली से, मुझे भी पता है हर किसी के परेशानी को, ठीक है, तो मात्र 199 में मिलेगा आपको। तो ये जो मिलेगा आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा, व्हाट्सएप से आप इसे डाउनलोड करके प्यारे साथियों या तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप अपने क्या कहते हैं मोबाइल से याद कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, जैसे 22 से एग्ज़ाम शुरू है, तो 21 को उसमें कुछ टिक भी लगवाएंगे आप लोगों को, ये क्वेश्चन को, मतलब इशारा मेरा समझ लीजिए क्या करना है, ठीक है। तो लेने के लिए आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 92 633, ठीक है, उसके बाद 41
119, ठीक है। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आपको मैसेज भी करना है। अगर मैसेज में संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें मोस्ट VBI क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। और एक चीज और मैं कह देना चाहूँ, जिसको लेना हो वही कॉल या फिर मैसेज करें, अगर ना लेना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है आप, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए इस नंबर पर जल्द से जल्द जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे साथियों, आपको हम ये क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है, इसमें सवाल है कि तलाक़े सरीह और कनाई किसे कहते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है और अहकाम क्या है, यानी कि हुक्म क्या है, इसके बारे में आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो अपने कॉपी पर इसको लिखिए और जो हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जब आप जिन अल्फाज से तलाक दी जाती है उसकी दो किस्में हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि जिन अल्फाज से तलाक दी जाती है उनकी कितने किस्में हैं, तो आप क्या टिक मारेंगे। ऑप्शन ए में रहेगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 3, ऑप्शन सी में रहेगा 4, ऑप्शन डी में रहेगा 5। तो आप क्या टिक मारिएगा प्यारे साथियों कि जिन अल्फाज से तलाक दी जाती है उसकी किस्में 2 हैं, तो 2 किस नंबर में है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको आराम से क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए को रख देना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर उनकी जो 2 किस्में हैं वो क्या क्या है। तो पहला है तलाक़ सरीह, दूसरा है तलाक़ किनाया। तो इस तरह करके आप लोगों को ये करना है। अब इसी से फिर ऑब्जेक्टिव उखड़ेगा कि क्या कहते हैं जिन 2 अल्फाज से तलाक दी जाती है वो अल्फाज कौन कौन है। ऑप्शन ए में रहेगा तलाक़ सरीह और ऑप्शन बी में रहेगा तलाक़ किनाया और ऑप्शन डी में रहेगा प्यारे साथियों, सॉरी ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में क्या रहेगा प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को हमने क्या बताया कि जिन अल्फाज से तलाक दी जाती है उसकी 2 किस्में हैं, वो दोनों किस्म का नाम क्या है, तलाक़ सरीह और तलाक़ किनाया। तो तलाक़ सरीह ऑप्शन नंबर ए में है और तलाक़ किनाया ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन सी में क्या है, ए और बी दोनों। तो ये दोनों हो जाएगा ना, तो आराम से हम क्या करेंगे, सी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे, आराम से आपका ये क्लियर। अब चलिए इसी के और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तलाक़ सरीह क्या है, इसके बारे में तफसील से पूछ रहा है। कह रहा है कि ऐसे अल्फाज में तलाक दी जाए कि उससे तलाक के अलावा दूसरा मानी मुराद न लिया जाता हो, जैसे कि मैंने तलाक दिया तो मुतलका है, तुझे तलाक है। अब देखिए तलाक़ सरीह का हुक्म, तो तलाक़ सरीह का हुक्म यह है कि उसमें नियत की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसी वक्त एक तलाक रजाई वाक़ हो जाएगी, ख्वाह नियत एक की हो या बाइन की, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए तलाक़ किनाया, वो अल्फाज जो सराहन तलाक के मानी में मुराद ना होते हो, उनसे बग़ैर नियत के या किसी मौजूदा करीना के तलाक नहीं पड़ती। मौजूदा करीना का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, बातों वहाँ तलाक का जिक्र हो या फिर शौहर गुस्सा की हालत में हो, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस तरह करके आप लोगों का यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। अब तमाम साथियों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे साथियों L2 भैया। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जा करके मुझसे आप अपनी ज़रूरत की बातें पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बहुत ही हार्ड होगा, इस बात का ध्यान और ख़ास ख्याल रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और जो स्टूडेंट नोट्स ले चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को 20 या फिर 21 तारीख को एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें टिक लगा दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन को आपको घोर के पीना है, तो आराम से आप लोग पी लीजिएगा। जो नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर जा कर के एग्ज़ाम मंथन नोट्स को ज़रूर ले लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद आपके एग्ज़ाम में साबित होगा। अगर आप पैसे को देखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात नहीं लाएंगे, अगर आप पैसे को नहीं देखेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबरात ला करके आप अपने नाम को रोशन कर सकते हैं प्यारे साथियों। कोई ख़ास बड़ी रकम नहीं है, इतने रकम को तो आप लोग घोर के पी जाते होंगे गुटखा मधु पान सुपारी में, लेकिन पढ़ाई के चीज़ के लिए आप लोग ये 199 को देखेंगे सोचेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है प्यारे साथियों। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और आप लोगों का कौन सा क्लास कमज़ोर है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं उस क्लास को कराऊंगा, ठीक है प्यारे साथियों। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।